Thank you, Anju ma'am. Thank you for joining in and encouraging us, even encouraging everybody. I'm so glad that I am here on this platform with you. Thank you so very much. So let me wait for another 2 minutes and we'll start with the session. Hello Jaswinder ji, thank you for joining in. I hope I'm clear, I'm audible and I'm visible. Hello Qaish, thank you for joining in. Hello Tanvi, thank you for joining in. Yeah, thank you Anju ji. Thank you. Thank you so much. Thank you. So let me start with a small introduction of mine. I am Purnima and I am a certified consciousness coach as well as a hypnotherapist. And by God's grace, I am also a spiritual medium in which I do numerology and I'm a Reiki Grandmaster. So I thank God for choosing me the medium so that I can help people as I can help people, and I love, I have a very vast career. Hello Tanushi ji. I have a very vast career. I worked with doctors in USA. There is a hospital in Chicago called Henry Ford Hospital, and I used to work for Henry Ford Hospital directly with the doctors. And thank you Jaswinder ji. And after that I joined corporate and I worked as a customer care executive for GE Capitals in Gurgaon. After my career, after 1.5 years of career in corporate world, I started my own venture of sales and sales and marketing firm. We used to promote hospitality industry where Domino's and Pizza Hut was one of the biggest client, and we used to work for them pan India, North India contract. We were, me and my sister, who were in a joint venture by the name of Tulip Promoters, and we used to work for such big brands. After that my journey took a 360-degree turn, and I conceived my younger daughter, and I left everything. I don't know how come I left everything, but I started my career at the age of 19 and then I left everything all of a sudden. I could not understand this feeling, why I want to stay away from the materialistic world. I have been craving for money and I have been earning good. So what was that was stopping me? And then slowly, gradually, I found my life purpose, and that is to help people, that is to make this world depression free and let everybody be smiling and happy. That was my life purpose, which I was not aware. आप इतना भागते दौड़ते हो अपनी ज़िंदगी में, आपको सब कुछ अचीव करना है, बट आप अपने लाइफ पर्पस को भूल जाते हो. सो दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी, एंड this is my journey. That's how I started, and I've been practicing for last 2.5 years now, and I have my clients are all the senior citizen. I sit with senior citizen, I go to NGOs, and then I help them meditate, I give them Reiki healing, I give them mind therapies so that they can rejuvenate themselves, so that they can rejuvenate their powerful memories, the beautiful memories. Then I work with children as well, children who are in some kind of phobia or some kind of bad habits. So with the help of hypnotherapy, I work with children as well. And then I met Anju ma'am,
and she's such a beautiful personality, such a charming personality. I met her on a social media platform. I have not got that chance to meet her personally, but I'm sure I will definitely meet her one day. And then She Connects, the amazing platform. I came to know about She Connects through FB only, and such a beautiful platform. I see people, that is the only group, I must tell you, that is the only group that at the end of the day, when I check all my messages, I see 250 messages, 200 messages every day. And when I scroll those 200 messages, I see appreciations, I see love, I see people promoting each other. Though there is a saying that girls always bitch each other, they cannot be friends, but when I come to this platform, I see 250 messages every day. Then I see, wow, what a beautiful feeling I get. The energy is viral. When I get that energy, everybody is praising each other, everybody is so respectful for each other. So that is the power of a strong leader. So when we have a strong leader like Anju ma'am with us, so obviously each and every member of the group will bloom like a flower, yeah. And we all will take that positivity, we all will take that love from her and spread it. So thank you very much, Anju ma'am. Thank you. Yeah, I totally agree with you. She Connects is empowering each other. Totally connected with you. Totally second this thought. And such a beautiful platform. I wish you all the best, and I just pray more power to you and to all the group members. Thank you very much. So now let me start with my topic. And most welcome मैम. Let me talk about जैसे मैंने आप सबको बताया कि मेरी जर्नी कैसी रही. So थैंक यू अर्पिता. यस. सो जैसे मेरी जर्नी कैसी रही, मुझे अपनी लाइफ का पर्पस नहीं पता था. इतना ह्यूज करियर होने के बाद, इतना अचीवमेंट्स होने के बाद, एंड मुझे ये नहीं पता था मुझे कहाँ जाना है. आई वॉज बिज़ी विद माई छोटी अचीवमेंट्स में मैं बहुत खुश थी. सो व्हेन आई रियलाइज्ड कि मेरा माइंड किस तरीके से वर्क कर रहा है, बाय ऑब्वियसली व्हेन हम किसी काम के टूवर्ड्स जाते हैं, जैसे कॉर्पोरेट लाइफ आप सबको ही पता है, एंड डे टू डे कितनी स्ट्रेसफुल होती है, हम कितना कुछ एक्सपीरियंस करते हैं एवरी डे, बट हम उसको लेते कैसे हैं. सो जब मैंने ये सोचा कि यार व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, मैं बस एक भागती जा रही हूँ, कभी स्ट्रेस फील कर रही हूँ, कभी लो फील कर रही हूँ, कभी बहुत ज़्यादा इन्वर्ट हो जाती हूँ, एकदम से वर्ल्ड से कनेक्शन तोड़ना चाहती हूँ. सो आई सडनली रियलाइज्ड व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग एंड व्हेन आई स्टार्टेड माई ट्रेनिंग, आई सडनली रियलाइज्ड दैट मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू नॉट लिव इन आवर कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस हमें पता तो है कि हम हैं, बट वी डू नॉट लिव इन इट. हम उसको छोड़ देते हैं, उसमें रहते नहीं हैं. सो नाउ टुडेज टॉपिक इज सच अ पावरफुल टॉपिक, एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक कि हाउ टू एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस. पहले तो हमें ये जानना है कि कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियसनेस किस चीज़ को कहते हैं, एंड देन उसको एक्सपैंड कैसे रखना है, एंड हमेशा उस मोमेंट में कैसे जीना है, सो दैट we feel very less stressed, we feel very calm every time. It is not necessary कि हम हमेशा गुस्से में रहें. It is not necessary कि हम प्रेशर में है तो हम हमेशा स्ट्रेस में ही रहेंगे. हम प्रेशर में रह के भी खुश रह सकते हैं. That's how that's what I call energy is viral. Our energy is viral. As you all understand, we all work on energy. ये दिखती नहीं है, but we transfer it. एक माँ है, अगर गुस्से में है तो आप देखेंगे उसका बच्चा एकदम से बहुत ही ज़्यादा क्रैंकी, एंग्शियस हो जाएगा. और अगर वो बच्चा बिल्कुल, अगर माँ नॉर्मल है, गुस्से पे कंट्रोल है, बच्चे अपने आप चेयरफुल रहते हैं. सो दिस इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस हियर आर मदर्स. और जो नहीं भी है वो ऑब्वियसली अपने सिबलिंग्स को देख सकती हैं, या अपने किसी बड़े से अपना एक्सपीरियंस मैच कर सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ हम लोगों के पास, हमें पता तो है स्ट्रेस में नहीं रहना है, बट स्टिल वी आर नॉट लिविंग इन टू दैट कॉन्शियसनेस. हम लोग उससे परे हैं, उससे दूर हैं, हम स्ट्रेस में हैं, एंड वी आर एंजॉइंग लिविंग इन द स्ट्रेस. द स्ट्रेस इज़ लाइक, आई हैव हर्ड, या अंजलि,
So I have heard so many people saying, hey, I am happy, yeah, I work for 12, I work for 12 hours and my boss is so happy. So what if I have puffy eyes? So what if I have dark eyes? So what if I have headache? Yeah, try and understand, it is not always necessary to be in stress. You can be very very happy and you can work. आप प्रेशर को पॉजिटिवली भी ले सकते हो. इट इज़ नॉट कि आपको दूसरों पे चिल्लाना है. इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आपको दूसरों पे अपने आप को अब बर्डन करना है अपने आप को कि काम नहीं हुआ है या मैं ये काम कैसे लूँगा या काम कैसे करवाऊँगी. वो प्रेशर में नहीं रहना. स्टॉप लिविंग इन दैट प्रेशर एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट when you come to your awareness, you will feel that your pressure, this stress is killing you. It is not motivating you. It is killing you inside. Your mind and your body are not working properly. They are not in connection. That is why you are experiencing changes in your body. Your mind is saying something and your body is reacting something. आपको डायबिटीज़ हो रहा है, कोई साइकोसोमेटिक कनेक्शन ही नहीं है. आपको डायबिटीज़ हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, आपको आपकी बॉडी में विजिबल है, आपके फेस पे बहुत इजीली विजिबल है. जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, देन ट्राई एंड नोटिस कि आपकी जो आई मसल्स हैं एंड दिस फोरहेड, ये हमेशा यहाँ पे इस तरीके से आप अपनी लाइनें देखेंगे. ऑलवेज दिस इज़ अ क्विक, आप इसको बहुत जल्दी से नोटिस कर सकते हैं. अ पर्सन हु इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेस्ड एंड अपसेट ऑन समथिंग, उसका माथा हमेशा इस तरीके से रहेगा, आईज बहुत छोटी रहेंगी. सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी विच वी लर्न इन साइकोलॉजी कि हाउ यू आर थिंकिंग इनसाइड योर ब्रेन. सो आप लोग भी ये ध्यान कर सकते हैं. एंड दिस इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस. Now I'll take you to a journey. I'll take you, I want to explain you this with a very beautiful example again. Now when I talk about consciousness, तो consciousness तो हम सबको पता है कि क्या होती है, कैसे होती है. Now I want you all to come on a journey with me. एक सड़क है, एक बहुत सुंदर सा हाईवे है एंड वी ऑल आर गोइंग इन दैट हाईवे. बहुत ही ब्यूटीफुल हाईवे है. लेफ़्ट में बहुत अच्छा व्यू है, राइट में बहुत अच्छा व्यू है एंड वी आर रियली एन्जॉइंग आवरसेल्व्स. अब चलते चलते देर आर वी हैव टू टेक सर्टेन टर्न्स और हमें कुछ लोग भी मिलते हैं. ऑब्वियसली चल रहे हैं तो बहुत लोग मिलेंगे और अब हमें उन लोगों से कैसे व्यवहार करना है या कैसे उनको अपने लाइफ में उतारना है, ये इस कॉन्शियसनेस का पार्ट है. सो हाईवे पे चलते चलते, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल हाईवे है, आप और मैं इकट्ठे चल रहे हैं, उसके साथ जैसे ही हम चलते जा रहे हैं एंड वी जस्ट चलते चलते हमने एक लेफ़्ट टर्न लिया है. लेफ़्ट टर्न लेते ही एक हमें बहुत ही अच्छे इंसान मिलते हैं, दूर से आते हुए मिलते हैं, जिनका नाम है मिस्टर जजमेंट. ज़रा नाम पे गौर फरमाइएगा. और वो कहते हैं कि मैं आपको आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट बनना चाहता हूँ. नाउ here comes the consciousness. Do you allow Mr. Judgment to be a part of your life? Yes and no ज़रा लिखिएगा कमेंट बॉक्स में. जजमेंट आपके पास आते हैं, हम रास्ते में चल रहे हैं और वो कहते हैं I want to be part of your life. So may I have the comments please? Will you take him in your journey or will you not? No. So Anjuji said no, and in a day yes, and Simi Bhullar said yes. So now जिन्होंने yes कहा है वो भी ठीक है, जिन्होंने नहीं कहा है वो भी keep it the same in your mind, right? अब हम again we made a move और हम कहाँ आते हैं, हम एक राइट टर्न लेते हैं. राइट टर्न पे चलते चलते बहुत ही ब्यूटीफुल हाईवे पे हम जब चल रहे हैं, वादियाँ हैं बहुत सुंदर हैं, और चलते चलते हम क्या देखते हैं कि राइट टर्न लेते ही हमें एक और बहुत अच्छे इंसान मिलते हैं जिनका नाम है मिस्टर फेथ. नाम
पे गौर फरमाइएगा जिनका नाम है मिस्टर फेथ। अब वो भी हमारी ज़िंदगी का पार्ट बनना चाहते हैं। सो येस और नो, आप उनको अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाना चाहते हैं कि नहीं, येस और नो इस बात का ध्यान रखिएगा और अपने मन में इसको लिख लीजिएगा। ग्रैब पेन एंड पेपर, ब्यूटीफुल थेरेपी है ये, ब्यूटीफुल जर्नी है ये। एंड और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि येस एंड नो। सो आई विल टेक हिम, I will take him. I like that man. Yes. Anju ji will also take it. Yes. मिल बैठेंगे सारे यार. So I will also take him. So आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सीधा चलते चलते एक बहुत ही प्यारी सी लेडी भागती हुई आ रही है, बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हुए हैं और उसका आते ही मुझे कहती है, आते ही हम सबको कहती है कि हाय, आई एम मिस फेथ, डू यू नीड माई कंपनी? आई एम मिस फेथ, डू यू नीड माई कंपनी? अब आप, मैं मिस्टर फेथ और मैं मिस्टर होप के साथ मिस्टर फेथ, मिस फेथ भी आ गई हैं, राइट? हम सब मिल गए हैं। और क्या आप उनको अपनी जर्नी का पार्ट बनाना चाहेंगे? अगर मैं नाम में कुछ गड़बड़ कर गई हूँ तो हमें होप भी मिल गई है और हमें फेथ भी मिल गया है। सो राइट इट इन योर कमेंट बॉक्स। मुझे वो बहुत पसंद आई, उनके कपड़े बहुत पसंद आए और जिस तरीके से उन्होंने मुझे अप्रोच करा, उनकी जो एनर्जी थी मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने उनको अपनी जर्नी का पार्ट बना लिया है। सो अब मेरे पास मैं, होप एंड फेथ है। इसके बाद आगे बढ़ते चलते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं और बढ़ रहे हैं हम, और बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, एंजॉय कर रहे हैं, म्यूज़िक लगा हुआ है, मज़े आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और फिर से एक लेफ़्ट टर्न लेते हैं। लेफ़्ट टर्न लेते लेते ही हमें मिलते हैं मिस्टर लव। अब मिस्टर लव है, बहुत सुंदर लाल रंग के कपड़े भी पहने हैं और बहुत ही वायरल, कुछ डिफरेंट सी एनर्जी है। ऐसी एनर्जी है कि जो मेरी थकावट को, उस जर्नी की थकावट को दूर कर रही है। तो वो मुझसे पूछते हैं, हे लेडी, वुड यू लाइक माई कंपनी? आई विल हेल्प यू, आई लव यू। मैंने उन्हें ले लिया है अपने साथ, अंजू जी ने भी ले लिया है, शमिंदर जी ने भी ले लिया है। सो उनकी एनर्जी इतनी वायरल थी, मैं उनको लेके आगे बढ़ पड़ी और सच में मेरी पावर चेंज हो गई, मेरी एनर्जी चेंज हो गई और मैं आगे बढ़ने लग गई और हम सब भी आगे बढ़ रहे हैं। अब बढ़ते 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 एक दोराहा आ गया। अब दोराहा है, एक पे लिखा है कि ये शॉर्टकट है और एक पे लिखा है कि ये नॉर्मल रास्ता है। अब हम सबको एक डिसीजन लेना है उस दोराहा से कि मुझे शॉर्टकट पे जाना है। जो शॉर्टकट है वो कुछ देर से जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, वहाँ तक तो उसकी रोड बिल्कुल क्लीन है, वहाँ तक तो मुझे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है किसी चीज़ की। और जब मैं दूसरी रास्ते की देख रही हूँ जो नॉर्मल है, वो मुझे कुछ खाली सा लग रहा है। सो ख्वाहिश जी ने भी कुछ लिया है, किसी मेंबर को अपने साथ लिया है। सो जब मैं उस दोराहे पे खड़ी हूँ, सो अब मैं कौन सा रास्ता चुनूँगी? अंजू जी कहते हैं नॉर्मल और मैं निकल पड़ी शॉर्टकट की तरफ। मुझे लगा चलो शॉर्टकट ले लेते हैं। वो फेथ, अंजू जी, इतने सारे लोग तो अभी तक मेरे साथ हैं ही, लव भी मेरे साथ ही है, तो शॉर्टकट ले लेते हैं। तो जैसे ही मैंने शॉर्टकट लिया, कुछ दूर चली, जर्नी बहुत अच्छी, बड़े मज़े आ रहे हैं और मुझे अपने आप पे एक छोटा सा एक और मैंने मेंबर को साथ लिया। वो बहुत छोटा मोटा सा ही मेंबर था जो का था ईगो, और उसका ना पता नहीं चल रहा था कि वो कभी मेरे साथ है कि नहीं है, कभी विजिबल हो रहा था और कभी नहीं हो रहा था। तो जब मैंने उस ईगो को अपने साथ लिया तो मुझे ईगो आ गया कि अंजू जी, ख्वाहिश जी, शमिंदर जी तो नॉर्मल रास्ते से जा रहे हैं, मुझे कहाँ से जाना है? मैं तो शॉर्टकट पे उनसे पहले पहुँचूँगी। और मैं चल पड़ी। अब मैं चल पड़ी, चलते चलते रास्ते में बड़े मज़े आए। अचानक से मैंने देखा एक बहुत ही बड़ा काला बादल मेरी तरफ भागता चला आ रहा है और उसमें मुझे बहुत बड़े बड़े लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने अपने नाम के प्लेकार्ड लगाए हुए हैं, जो कि है जजमेंट, कंट्रोल, हेट्रेड, स्ट्रेस, एंजाइटी, कंट्रोल। ये सब लोग मैंने देखा कि मेरी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं, बढ़ते ही चले आ रहे हैं। और मैंने ईगो से पूछा, भाई तुम्हें भी कुछ नज़र आ रहा है? तो ईगो कहती नहीं, अरे ठीक है, चल क्रॉस कर लेंगे, इन सबको भी ले ले और क्रॉस कर लेंगे, कुछ नहीं होता है। उनसे पहले पहुंचना है जो दूसरी टीम नॉर्मल रास्ते से गई है, उससे
पहले पहुंचना है, फर्स्ट आना है, अपने आप को दिखाना है कि तू कितनी पावरफुल है। और मैं निकल पड़ी। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। इसके साथ साथ मेरे अंदर ऑटोमेटिकली जो ईगो थी उसने एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ट्रांसफ़र करा जिसका नाम था फियर। और मेरे कदम जो बहुत तेज़ की भाग रहे थे वो बहुत धीमे धीमे चलने लगे, क्योंकि फियर ने मेरी बॉडी को जकड़ लिया। और मैं जजमेंट, कंट्रोल, जेलसी, हेट्रेड और स्ट्रेस, एंगर, डिप्रेशन की दुनिया में आ गई। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी कॉन्शियस, जब तक मैं बहुत इजी रास्ता ढूंढ रही थी तो मैं आप सबके साथ चल रही थी, तब तक मेरी कॉन्शियस को मुझे लग रहा था कि आई एम लिविंग इन माई कॉन्शियसनेस। और द मोमेंट मेरी लाइफ में दोराहा आया तो मैंने क्या चुना? शॉर्टकट, जो कि हम बहुत सारे लोगों के साथ नेचुरली होता है और हमें पता नहीं चलता है। ये जर्नी हम सबकी लाइफ का पार्ट है। आज नहीं तो कल हमने इस जर्नी को तय करा है। कहीं ना कहीं जजमेंट, जिसको हमने शायद कभी छोड़ा हो, वो फिर आके खड़ा हो गया है। अगर किसी और के लिए नहीं है तो सेल्फ जजमेंट। एंगर, जो बहुत ही नॉर्मल, जिसको हम चीज़ कहते हैं कि एंगर इज़ वेरी नॉर्मल, ये एंगर मुझे जेलसी की तरफ लेके गया, जेलसी मुझे हेट्रेड की तरफ लेके गई, हेट्रेड ने मुझे स्ट्रेस, नाकामयाबी, एंजाइटी दी। एंड वेयर इज़ माई कॉन्शियसनेस? मैं तो कह रही थी कि आई लिव इन माई कॉन्शियसनेस, आई लिव इन माई अवेयरनेस। वेयर इज़ माई कॉन्शियसनेस? जब कॉन्शियसनेस में ही नहीं रह रही तो वो एक्सपैंड कैसे होगी, वो बढ़ेगी कैसे? सो दिस इज़ द जर्नी जो हम सबके साथ बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही नॉर्मल है। मैं किसी को ये नहीं कहती कि आप हमेशा 100% आउट ऑफ स्ट्रेस रहिए, आप हमेशा 100% मोटिवेटेड रहिए। अगर आप हमेशा ही मोटिवेटेड रहेंगे तो क्या होगा? आप काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, अचीवमेंट्स करते रहेंगे। आप अपने आप को शार्प कैसे करेंगे? कॉन्शियसनेस इज़ द स्किल when you are not doing anything, you are silent, you are completely silent, you are in your awareness and you are observing everything। जैसे कि जंगल में शेर होता है, शेर एक जगह पे अपने शिकार को बहुत देर तक बैठ के घूरता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है और समय आने पर हमला करता है। राइट? एम आई राइट गाइज? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? अगर एक बार येस कह देंगे तो इट वुड बी मोर कंफर्टेबल फॉर मी। सो आप जस्ट एक शेर की मैं बात कर रही थी कि वो जंगल में हमें सिर्फ वो घूरता रहता है अपने जो शिकार है उसको। इट डजंट मीन्स, थैंक यू अर्पिता, थैंक यू अर्पिता, इट डजंट मीन्स कि वो खाली बैठा है, इट डजंट मीन कि वो कोई काम नहीं कर रहा है, इट डजंट मीन कि उसमें पावर नहीं है, वो थक गया है। नो माय डियर फ्रेंड्स, इट मीन्स दैट ही इज़ एक्टिवेटिंग हिज कॉन्शियस। वो अपनी कॉन्शियस पे वर्क कर रहा है, अपनी अवेयरनेस पे वर्क कर रहा है, उसका फोकस अपने शिकार पर है, इस बात पर है कि अपनी पावर में रह के किस तरीके से मुझे अपना शिकार हासिल करना है, वार खाली नहीं जाने देना है। सो दोस्तों, यही कॉन्शियसनेस की कहानी है। दिस इज़ ए कॉन्शियसनेस एंड नाउ हाउ टू एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस, हाउ टू एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस। So there are 5 beautiful points and these are very very normal point। हम डीप में जाएंगे नहीं। एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस इज़ अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट एंड वेरी डीप सब्जेक्ट। स्लोली स्लोली जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे अपनी डे टू डे लाइफ में, यू विल कम टू नो। बट ये 5 पॉइंट अगर आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, फर्स्ट अवेयरनेस। अवेयरनेस, आप अपनी कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज़ की अवेयरनेस रखें। आप में कितनी क्षमता है, आप में कितनी ताकत है, आप
आप में क्या पावर है? लव, होप, फेथ, यस, ये सब है। करेज, एक्सेप्टेंस। अगर आप अपनी इन 5 पावर्स को, कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज़ को नरिश करते हैं डेली, सो बिलीव मी, आप बहुत जल्दी उस एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस के उस सर्कल में रहते हैं जिसमें आप बाहरी दुनिया के अफेक्ट से अनटच्ड रहते हैं। यू विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन, यू विल बी द अमंग्स दोज मिलियनेयर्स जो आज सक्सेसफुल माइंडसेट को, एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करते हैं। क्या ऐसा है? अगेन आई वांट टू आस्क द क्वेश्चन, क्या ऐसा है कि जितने भी मिलियनेयर्स हैं, लेट अस से अंबानीज, लेट अस से ऑल द सेलिब्रिटीज, लेट अस से आवर प्राइम मिनिस्टर, लेट अस से द आवर एक्स प्राइम मिनिस्टर्स एंड ऑल द प्लेयर्स, द फुटबॉलर्स, धोनी एंड विराट कोहली, क्या ऐसा है कि ये अनटच्ड है क्रिटिसिज्म से? ऐसा नहीं है। क्या ऐसा है कि इनको लोग इनके काम के लिए हमेशा मोटिवेटेड ही रहते हैं, कभी इनको कुछ गलत नहीं बोलते? ऐसा नहीं है। क्या ये कभी नेगेटिव नहीं होते? ऐसा नहीं है। क्या इनकी मूवीज़ कभी फ्लॉप नहीं होती? ऐसा नहीं होता। बट ऐसा क्या है, दे कम अगेन। हाँ कम, अक्षय कुमार एक साल में 4 पिक्चरें दे जाता है, यस, एक फ्लॉप होती है, 3 हिट होती है। क्या फ्लॉप उसे असर कर रही है? नहीं। एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस में उसे पता है मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरी अवेयरनेस क्या है, मैं किस तरीके से जी सकता हूँ, मैं किस तरीके से कामयाबी को हासिल कर सकता हूँ, ना कि दुनिया मुझे किस तरीके से फोर्स कर रही है। जब हम कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं तो ये लोग हम पे बहुत टारगेट करते हैं कि नो यू हैव टू वर्क लाइक दिस, बट इंसान वही है जब आप अपनी अवेयरनेस में रहते हुए, अपने कॉन्शियसनेस में रहते हुए आप ये मानते हैं कि दिस इज़ माई कैपेसिटी, लेट मी ट्राई इट ऑन माई ओन, लेट मी नॉट गेट अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मी, I am myself, I am responsible for my body and for people around me. Yeah, so let me work within my own power. Yes, the first step I said is awareness, and now second we come to know, accept yourself the way you are. Yes, we all need to know our own potential, very true, Anju ji. And then again the second point is accept the way you are. No caste, no creed, no color. जहाँ जाते हो, जहाँ रहते हो, leave your spark, leave your spark. I still remember, I still remember, बहुत beautiful story है मेरे बारे में, आप सबसे share करूँगी, that I used to hate my teeth. जब मैं बड़ी हो रही थी, ग्रो कर रही थी एज अ टीनेजर, देन मेरी शादी हुई, आई यूज्ड टू हेट माई टीथ, मुझे लगता था ये बहुत बड़े हैं और जब मैं हंसती हूँ तो ये बाहर आ जाते हैं। आई वॉज मिसिंग सेल्फ लव, तब मुझे पूरी दुनिया आके कहती थी यार अपने दांतों का इलाज क्यों नहीं कराती, कैसे हंसती है, पूरे दांत बाहर निकालती। एंड द मोमेंट आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव एंड consciousness, the moment I started practicing consciousness, I started loving myself. And to my surprise, I was giving, one day I was giving Reiki healing session to someone, and there was a lady who came to me and who wanted to learn Reiki. And when she left, what she said, you have got a beautiful teeth, your teeth are very beautiful and you've got a very beautiful smile. And I was so happy that time, and I realized I started loving myself. That is why people have started loving me. They have accepted me. जब तक मैं अपने आप में कमियां निकाल रही थी, people were like यार क्या है, निकालना इनको, ये करना वो करना। क्या मुझे नहीं पता था? मुझे पता था मैं अपने आप का, अपने फेस को कैसे ठीक कर सकती हूँ, बट मैं नहीं करना चाह रही थी, कोई भी रीज़न नहीं। तो बट अंदर फिर भी मेरे फियर था, आई एम नॉट गुड एट इट। और लोग एनर्जी क्या मैं दे रही थी, आई एम नॉट गुड एट इट, आई एम अट्रैक्टिंग इट। और व्हेन आई स्टार्टेड लिविंग इन कॉन्शियसनेस, इट इज़ ओके, दिस इज़ माई पावर, आई एम लाइक दिस, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। वॉट हैपेंड, पीपल स्टार्टेड कॉम्प्लीमेंटिंग मी फॉर थिंग्स which I used to think that ये अच्छे नहीं है। Yeah, so this is how energy works, and your consciousness, pull people towards you. And then the third point is practicing mind, body and soul therapies.
how do we practice mind, body and soul therapies? It is very very important for our day to day. आप सोचते हैं बट अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं, आप वहीं पे रहते हैं जहाँ आप हैं। जैसे आपको अपने घर से निकल के मार्केट जाने तक के लिए रास्ता तय करना है, वैसे ही अपनी कॉन्शियसनेस में रहने के लिए आपको बहुत सारी जर्नी तय करनी है, कुछ प्रैक्टिसेस करनी है। माइंड के लिए पॉजिटिव थॉट्स प्रैक्टिस करनी है, मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज माइंड इज़ द पावरफुल टूल। आपका जो माइंड है वो सब पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता है। एंड यस, बिलीव इन योर सेल्फ, की टू सक्सेस, डेफिनेटली जसविंदर जी। देन माइंड, जैसे मैंने बोला माइंड, आप देखेंगे कि साइंटिस्ट किस तरीके से काम करते हैं, दे वर्क ऑन देयर माइंड्स, यू नो, उनके माइंड से इतना सब कुछ चलता है। देन कम्स बॉडी। नाउ माइंड और बॉडी का कनेक्शन है, ये हम सबको पता है, न्यूरॉन्स एंड सेल्स। बट हमारी बॉडी बीमार क्यों रहती है और हमारे माइंड हमेशा डिमोटिवेटेड जब रहता है, तो समझ जाओ वी आर नॉट वर्किंग ऑन आवर बॉडी एंड माइंड ऑल्सो। जब आप माइंड के लिए मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हो तो योर बॉडी हैज़ टू take the sufficient good amount of food that is required. You know, our body is the least bothered thing in this entire world. No one pays gratitude, no one pays attention to our own body parts. I take meditation sessions when I do expanded consciousness programs, so I take meditation sessions. Then when I talk to people कि क्या कभी आपने अपनी आँखों को थैंक यू बोला है, क्या आपने कभी अपनी 5 सेंसेस को, साइट, हेयरिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग, फीलिंग को कभी थैंक यू बोला, तो जैसे इनको क्या थैंक यू बोलना है। बट आई वॉन्टेड टू आस्क यू, क्यों नहीं बोलना है यार, दे आर डूइंग सो ब्यूटिफुली। गो एंड सी पीपल जिनकी टांगें नहीं है, गो एंड सी पीपल हु कैन नॉट सी। सो ये कहने से नहीं होता है, वी हैव टू प्रैक्टिस how to generate consciousness, no? So action has to be taken. So this is the part of action. Eat, give food to your body which is required. आजकल हम सब लॉकडाउन में हैं और हम बहुत कुछ खा रहे हैं, बहुत कुछ खा रहे हैं जो हमारी बॉडी की डिमांड नहीं है, बहुत हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो नाउ वी हैव टू लिव इन कॉन्शियसनेस कि yes, this is not my type, this is not my body type, my body आज इसको लेगी but tomorrow it might not take it. So why should I go to that moment? Why should I dig my own grave? No. My purpose is to be happy and live healthy life. Yes. So that's how mind. Then body. Then third is spirit, your soul. Give food to your soul. Try, आप काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो करिए. In whichever business you are, go ahead with that business. In whichever office you are working, as a creative writer, as a journalist, you are a fashion designer, any work you are doing, you are a chef, you are into cooking business, anything you are doing, but try and listen to the voice of your spirit, your soul, because उससे बड़ा there is nothing in this world. आपकी आत्मा को जितना आप फूड देंगे, अंडरस्टैंड योर लाइफ पर्पस, उतना आपका कॉन्शियस एक्सपैंडेड रहेगा, ग्रो करेगा. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ 3 फैक्टर्स: माइंड, मेडिटेशन, टू रिलैक्स योर माइंड. एंड बिलीव मी व्हेन आई से मेडिटेशन, मैं ऐसी मेडिटेशन कराती हूँ कि हम फिल्मी सॉन्ग्स पे मेडिटेट करते हैं एंड पीपल दे रियली गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दैट थेरेपी. It is a very beautiful therapy. So when I say meditation, please don't go to that era जहाँ हमारे सप्तऋषि थे. No. आज we have many modern techniques of meditation. So you can always join my meditation sessions. And then number 2 is body. Body, exercise, food. बहुत important है. Solar energies बहुत important है. Lunar energies बहुत important है. अपनी body में ईड़ा पिंगला नाड़ी को आपको किसी भी हालत में आपको इनका फूड देना है, इनको बढ़ाना है, इनको ओपन रखना है. सो यू विल सी द ग्लो इन योर फेस दैट आफ्टर, जैसे जैसे ये नाड़ी खुलने लगेगी. देन थर्ड इज़ फाइंड योर लाइफ पर्पस, जो कि आपकी सोल का फूड है. आप जो काम कर रहे हैं करिए, बट आस्क योरसेल्फ कि मैं इसके साथ कैसे कर सकता. आई एम नॉट सेइंग कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर आ जाइए. हम अर्थ प्लेन में आए हैं, ये हम कोई नहीं कर सकते. सो नेवर ट्राई टू डू इट. सो बट
साइमल्टेनियसली हम अपनी सोल के लिए खाना जनरेट कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ पर्पस को ढूंढ सकते हैं और उस पर आगे बढ़ सकते हैं। देन फोर्थ पॉइंट इज सेल्फ टॉक। टॉक टू योर सेल्फ। कौन, अब कितने लोग हैं जो अपने आप से रोज़ बात करते हैं? आई वॉन्ट टू नो, प्लीज़ डू शेयर इट। आई टॉक टू माई सेल्फ एवरी डे। जब से मैंने सेल्फ लव अपनाया है, आई टॉक टू माई सेल्फ एवरी डे, सुबह शाम। सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स गाइज। कितने ऐसे लोग हैं, जसविंदर जी, अंजू जी, अर्पिता जी, लेट मी नो। शमिंदर जी, लेट मी नो कि सिमी जी, लेट मी नो कि आप लोग अपने आप से बात करते हैं। डू यू टॉक टू योरसेल्फ रेगुलरली? So I talk to myself regularly, and believe me, I have noticed the words I talk. Yes, Arpita ji said I talk, Tanushri ji said I talk, Simi ji said in thoughts. So now, very beautiful. Thank you very much guys, all the best. So now when I say I always, Anju ji said I always, and Anju ji, I can see it on your face, that the aura you are carrying with yourself, you know, we all can see कि आप में कितना तेज है. So yes, Jaswinder ji is saying yes, Arpita ji is saying yes. So now जब हम अपने आप से बात करते हैं, always remember guys, words shape us, but the words which we talk to ourselves, the words which we say to ourselves model us, वो हमें बनाते हैं. So always remember, what are you talking to yourself whenever you are in any decision making mode. आप कोई भी decision ले रहे हैं, yes, you find a solution. Whenever you are talking to yourself, whenever you are talking to your children, whenever you are talking to your neighbors, whenever you are talking to your peer group, whenever you are talking to your spouse, anybody, your parents, anybody, mind your words, because the words really shape us. So that is again a part of consciousness. And when मैं ऐसा नहीं कहती कि कभी, ऑब्वियसली वी ऑल आर ह्यूमन, हम जितना मर्जी एक्सपीरियंस करते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं अपनी बॉडी को ठीक रखने की, कॉन्शियसनेस में रहने की, अवेयरनेस में रहने की, बट ये समटाइम्स गलती होती है. बट जब गलती होती है, इफ़ यू रियलाइज इट देयर एंड देन राइट इट ऑन अ जर्नल. जर्नल राइटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. रोज़ डायरी लिखिए, सी योरसेल्फ कि आज मैंने कैसा बिहेव करा, मैंने अपनी बॉडी के साथ कैसा बिहेव करा, मैंने अपने माइंड के साथ कैसा बिहेव करा. And this will help you to raise and expand your consciousness. Now, last point is last point is avoid all the black clouds. No judgment, no jealousy, no hatred, no anger, no stress. So अगर ये points नहीं होंगे तो stress and anxiety and depression आपसे बहुत दूर रहेगा, and you will form a very positive aura, जिससे ये आपकी लाइफ में नहीं एंटर कर पाएगी. सो एज अ पार्ट, और एक बहुत छोटी सी चीज़ है विच आई प्रैक्टिस रेगुलरली, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ. आई वॉन्ट यू ऑल टू जस्ट क्लोज योर आइज फॉर अ मोमेंट, एंड जैसे ही घबराहट होती है, जैसे मैंने बोला कि वी ऑल आर लिविंग इन कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस, बट इसको एक्सपैंड कैसे करना है. जैसे ही कुछ अनवांटेड इंस्टेंस आपके साथ होता है, कुछ अनवांटेड लोग आपके अराउंड होते हैं, कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जो आपको नहीं टॉलरेबल है. सो आप अवॉइड नहीं कर सकते, बट आप क्या कर सकते हैं? यू कैन एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस, यू कैन लिव इन थरो अवेयरनेस. सो क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, अ स्लाइट डीपर ब्रेथ देन नॉर्मल. टेक अ डीप ब्रेथ and hold your breath. Hold your breath and say, I am relaxed. Release your breath. Take a deep breath again. I am calm. Release your breath. Take a deep breath again. I am relieved. Release your breath. Take a deep breath again. I love myself. Release. Now, these 4 sentences, keep repeating it till the time you feel the change in your energy. Keep repeating it till the time you feel कि your energy, you are releasing that
that stress, you're releasing that fear of those energies which are near you. So this ways आप अपनी ज़िंदगी में अवेयरनेस को रख सकते हैं, कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं. सो मेरी तरफ से ये है आप सबके लिए अ गिफ्ट. प्लीज़ एक्सेप्ट इट. एंड आई वुड लव अगर आप सब मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ इस बारे में और जानना चाहेंगे, तो आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस. एंड आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर. आप लोगों को मेरी बात पसंद आई, अच्छी लगी एंड हेल्पफुल लगी. Thank you, Anju ji. Thank you very much. Thank you very much. And now till the time I receive questions, I also want to tell you that I practice in Gurgaon. I have a brand name, Aspire to Inspire. Thank you, Simi ji. Thank you so much. By the name of Aspire to Inspire. And I practice. Thank you, Arpita ji. Beautiful session. Thank you. So beautiful you are. And in Sector 57. So I have a meditation session. I take meditation sessions always. These days I am taking sessions online, so you can all come and join me. I will be very very happy if you join my blessing program. I have named it blessing program, and it has really come up as a blessing in many many lives. So I request you all to join me in my meditation session and take the benefit. And yes, I also do one-on-one session. Thank you so much, Anju ji. Yes, definitely, why not? I'm looking forward for the meets. Yes. And I give one-on-one sessions. I perform hypnotherapy. Hypnotherapy is for habit breaking. If someone in the family if someone is really addicted to smoking and alcoholism, and in children there is a very common problem of bedwetting, even in adults also, and then phobias, nightmares and fertility issues. So we practice many therapies, and you can all contact me anytime. Anju ji कह रहे हैं, how to remain out of fear in this present crisis. Very beautiful question, Anju ji. Now, as I said, awareness, and as I said, consciousness. So when I talk about awareness, it means that we are living in the present moment now. जैसे कि let us go back and join the dot. जैसे मैंने कहा आपको कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी एनर्जी आपके आसपास है जो आपको अच्छी नहीं लगती है, बट आपने अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल करके क्या करा? एक्सेप्टेंस लाई. नाउ व्हाट इज दैट एक्सेप्टेंस? दैट एक्सेप्टेंस इज लिविंग इन अ नाउ मोमेंट. यस, यू हैव एक्सेप्टेड इट कि यार ठीक है, ये एनर्जी मेरे आसपास है, बट आई एम रिलैक्स्ड, आई एम काम. सो आपने क्या करा? You start living in the now moment. Now a present moment ऐसा है that we have to live with it till the vaccine comes. We have to live with it. आप क्या कर सकते हैं? क्या आप fear को अपने पास लाने देंगे? क्या आप लोगों को जज करेंगे? क्या आप कंट्रोल करना सिचुएशन को कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं? नो, अभी तक ये कोई नहीं कर पाया, सो हम भी नहीं कर सकते. सो नाउ इट इज़ अगेन एक्सपैंड योर होराइजन, एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस कि आप अपने आप में कैसे बिलीव करके कैसे काम करना है. अंडरस्टूड, हम सबको काम करना है, वापस बाहर जाना है, वापस अपने ऑफिसेस जाना है, वापस मार्केट्स जाना है, वापस शॉपिंग करनी है, वापस अपनी ज़िंदगी रिवाइव करनी है. अंडरस्टूड, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी रिजुविनेशन के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो I still say that be in the moment, be in the present moment, follow all the norms and do not panic. जब तक आप पैनिक रहेंगे तब तक आप कुछ गलती करने के चांसेस आपके बहुत हाई हैं. The moment you live in your awareness, yes, if I am going out, I have to maintain social distancing. We have to live with this new normal and we have to accept this. अभी मैं आपको कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स बहुत सारे हैं जिसमें हम ये देख सकते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ इश्यूज, थायराइड प्रॉब्लम्स जो सेल्फ जनरेटेड हैं, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स जितनी हैं वो कोरोना से भी बहुत ज़्यादा है इंडिया में. बट कोरोना को इस तरीके से प्रेजेंट करा गया कि इतना लाइफ थ्रेटनिंग बनाया गया कि पूरी दुनिया उसी टाइम थम गई. सो ये फियर है, यू आर इन्वाइटिंग फियर इनटू योर लाइफ और आप फियर में ठप होके बैठ गए.
वी हैव टेक्नोलॉजी, वी हैव मेनी अदर वेज. हमने वो वेज ही नहीं सोचे, हमने सोचने की शक्ति ख़त्म हो गई, इस फियर ने हमें दबा दिया. सो गाइस, जैसे मैंने बताया था, लव, होप, फेथ, ये पॉइंट्स को आप अपने साथ रखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे. द मोमेंट यू इनवाइट फियर, द मोमेंट यू इनवाइट जजमेंट, द मोमेंट यू इनवाइट crisis, control into your lives, you start living with the fear. So be in your power, be in your awareness, and we have to live with it, accept it, live in your consciousness, follow all the norms. Fear is no solution. Fight with it, fight with it. We all are fighting, we all are. यार हम पहले से ही फाइट करते आ रहे हैं, बस ठीक है एक नया नाम हमें मिला है. एक्सेप्ट इट. आप वो पढ़िए जो आप पढ़ना चाहते हैं, आप वो सुनिए जो आप सुनना चाहते हैं. आई हैव स्टॉप वॉचिंग न्यूज़ फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. आई बिलीव इट्स बीन मोर देन 2.5 years नाउ, बिकॉज आई फाइंड कि न्यूज़ में जो हम देखते हैं, मीडिया में जो हम देखते हैं, इट इज़ मोर फॉर देयर TRPs. इट इज़ मोर फॉर देयर TRPs. बहुत क्लियर है. I am volunteering myself for coronavirus patients and I am seeing क्या हो रहा है. धक्के खा रहे हैं यार, कुछ नहीं हो रहा है जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा है. सो स्टॉप बॉदरिंग. लोग आपको क्या पहुंचाना चाहते हैं उसको मत सुनिए. यूज़ योर माइंड, रीड द स्टैटिस्टिक्स. ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक से लोग मरे हैं. इतने तो अभी तक कोरोना से नहीं मरे जितना हार्ट अटैक से मरे हैं, जितने डेंगू से मर चुके हैं. स्टिल वी आर लिविंग. हमने अपनी ज़िंदगी स्टॉप नहीं करी है. तो गाइस, बी इन योर पावर. यू ऑल आर वंडरफुल, यू ऑल आर पावरफुल. लेट अस लिव इन आवर अवेयरनेस एंड लेट अस फॉलो द नॉर्म्स. हाथ ही तो धोने हैं, 10 बारी आज भी तो धो ही रहे हैं. सो वही करना है. दैट इज़ माई आंसर टू द क्वेश्चन. एंड आई थैंक यू ऑल वेरी वेरी मच for joining me, appreciating me, loving me. And Ila ji said, well said. Thank you so much, Ila ji. I love you all and hope to see you, meet you all. Once again, I would like to thank Anju ji and all the She Connect family for giving me this chance to come on the Facebook platform, live on the Facebook platform. And this is for the very first time I came here and I got to know you beautiful people. Thank you once again. I love you all. Is it okay? Shall I switch off the live? Yeah. Yes, true. Tanvi ji is saying, I too have not watched news on TV past 2 years. Great, Tanvi ji. How are you feeling? Tell everyone after that how are you feeling. Yeah, definitely, Anju ji, I will publish it. Yes. And Tanvi ji, just a request. How are you feeling? Please share your views. How are you feeling before and after? Let us have the comparison before and after of your mind, of your mindset. Arpita ji said thank you so much. Arpita ji, so nice of you. And Anchal Agarwal ji started watching. Neeti ji saying thank you dear Jaswinder ji. True, I agree with you. Each point of yours, keep the good work going. Thank you Jaswinder ji, so glad. And Tanvi ji saying I am doing great. So see, before and after the session, before and after watching the news, and जब हमने before and after करा है, so our perspective has suddenly changed. So news is not the problem. The problem is what you are taking inside your head from the external sources, and news channel is one of the external sources. So filter लगाइए क्या लेना है और क्या नहीं लेना है. Live in your power. Tanvi ji, before I was so tensed and getting all the negative news. Now I am actually bindas even in Corona. Hats off to you, my dear. Hats off to you. Well done, clap for you. Pat your back, actually. Pat your back. I similarly say I never watch TV because I don't like. Sometimes I see this Kapil Sharma show just for laughter sake, and I admire all those people. They are making million of people smile and happy, and you know we all get together Kapil Sharma का show देखने के लिए. तो lot more power to them. Sylvie ji saying even I don't watch news and I feel so relaxed and my mind and soul is in peace always. See, we are giving food to our soul. When we are relaxed, when we are calm, you know, our soul is automatically getting that food which is its requirement. Amazing people you are, amazing people. And Anju ji, true. Yes, Anju ji, very true. Thank you so very much.
and मन नहीं कर रहा है, but time to go because I have a session at 5 o'clock, a meditation session. So thank you very very much. I love you all. Thank you, beautiful people. Thank you so very much, and I love you all. Have a good time. Have a memorable time, and I wish you all a luck very much. Thank you. Thanks, Anju ji.